Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 13 July 2020. So let us see which are the important articles that have appeared in today's newspaper, which are having some significance for our examination, for mains purpose and for prelims purpose. Let us see one by one. So first of all, on page number 6, the editorial, Sure Power. So the article having context of push for solar energy by the government of India. Recently we know that the Prime Minister of India has inaugurated a 750 megawatt photovoltaic project in रेवा मध्य प्रदेश. ये तो आपको प्रीलिम्स के लिए भी पता होना चाहिए, but yes, we need to know the follow up of all these solar energy initiatives by the government of India. And some important facts that the article is talking about is the installed capacity of this solar energy is at present 75 gigawatts, and because of COVID-19 there is a slowdown which in certain aspects, and the capacity building by the 2024 is projected to have 50 gigawatt, which is much less than the target that we have under National Solar Mission, 100 gigawatt of solar power by 2022. Fine. So this is very important aspect when we talk about the Paris climate and the agreement and the INDCs, intended nationally determined contributions, that we have provided on behalf of the country. This is very important aspect and one of the important target that we need to achieve in green energy aspect. Fine. So what are the challenges? The article is talking about two important challenges. One is low domestic solar cell manufacturing capacity, and second is heavy reliance on China. So we know that at present there are some let's say tensions between India and China relations, that is surely going to affect the bilateral trade between these, and therefore the what you can say, the raw material required from for this industry or solar energy panels and solar cells. So we are heavily dependent on China, and that's why one of the important challenge. How China grew in this sector, basically in 1990s at whatever the capacity we have today, it was there of China in 1990s, and then the government supported this industry and therefore it grew. And what important initiatives it took is identifying and acquiring top technologies globally, importing critical raw materials like polysilicon. कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी आपको पता होने चाहिए कि ये सोलर सेल्स बनाने में यूज़ होता है पॉलीसिलिकॉन. Acquiring solar manufacturers abroad, investing in third countries with ready capabilities. ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं आप चाइना ने फोकस किया है, तो हमने भी थोड़ा सा इस एंगल से देखना चाहिए कि there is a need of government support in terms of way forward. Industry must get help to set up facilities and avail low cost financing, both important elements of China's rise, and able to invest in intellectual property rights. Fine, this is very important aspect in solar energy, and the forward looking program should be devised which should include newer technologies such as aesthetic photovoltaic windows, roof tiles for building, multi-role urban structures, greater use of residential and commercial building to deploy more panels. Okay, तो ये आप वे फॉरवर्ड में बोल सकते हैं कि कम से कम लैंड अवेलेबल है, फिर भी उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए टू हार्नेस दिस सोलर पावर. सो कंक्लूजन, very good statement. The pandemic presents a critical opportunity for India to plan a green deal on the lines of what European Union has committed itself, that the future growth and employment should align itself to environmental and sustainability objectives, particularly in energy production away from dirty fuels such as coal. तो ऐसे कंक्लूजन आपने लिखना चाहिए आंसर में. ठीक है, तो एनवायरनमेंट सेक्शन हमें पता है, या कोई एस्से पे भी टॉपिक आता है रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो आपको ये लिखना है. एंड यस, सम स्टूडेंट्स विच आर हैविंग ज्योग्राफी ऑप्शनल, दे कैन ऑल्सो टेक इनपुट्स in terms of renewable energy production in India. Fine. Moving on, what kind of question we can have here? India has high ambitions in solar energy sector but falls short on many fronts. Examine. ठीक है, तो हमने एम्बिशंस लिखने हैं, हमारे टारगेट्स क्या क्या है, क्या नहीं कर रहे हैं, और हम बोल सकते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है.
ठीक है, और वे फॉरवर्ड देना चाहिए। एग्जामाइन जब बोला जाता है तो हम जो लिमिटेशंस और चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए एक वे फॉरवर्ड देना चाहिए। फाइन, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल। Now this article provides a new angle when we look at the recent clashes between India and China at the LAC, line of actual control, and what the article is saying is China's move into Galwan Valley and Pangong Lake were likely to plan for months and followed new mobilization order by President of China. Fine, तो ये एक चीज़ नई हमें पता चली है कि जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ट्रेनिंग मोबिलाइजेशन ऑर्डर जो है ये दिया था जनवरी में 2020 में फॉर स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री ट्रेनिंग इन रियल कॉम्बैट कंडीशंस। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल में जो स्कर्मिशेस हुए हैं ये एक उनकी ट्रेनिंग कॉम्बैट के जो रियल लाइफ सिचुएशन के लिए ये ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वन ऑफ द उसका एक इन्फरेंस निकाला जा सकता है। एट द सेम टाइम इट ड्रामेटिकली अल्टर्ड द पैटर्न ऑफ एनुअल एक्सरसाइजेस। ये हर साल होते हैं वहाँ पे एक्सरसाइजेस, बट इन्होंने इस बार क्या कर दिया है, रियल लाइफ कंडीशंस में उन्होंने अप्लाई करने के लिए ये एक्सरसाइजेस ली है। ठीक है, अब ये सिर्फ फ्रंट इंडिया के साथ नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे चाइना जो है मल्टी फ्रंट हाउ देयर आर्मी विल बी एबल टू let's say deal with multi-front reactions, or let's say for India, and then there is South China Sea, then there is the, we can say with Taiwan, other countries is Southeast Asia and even Japan. Okay, so whether China is having that kind of capability to deal let's say all these fronts simultaneously, तो उसके लिए एक एक्सरसाइज उन्होंने समझ सकते हैं कि जनवरी से ही हम देख रहे हैं कि जैसे साउथ चाइना सी में उन्होंने बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, इंडिया के साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रख के ये एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं इस ऑर्डर का। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ए मल्टी फ्रंट सिचुएशन। ठीक है, तो ये एक आप ध्यान रख सकते हैं IR में, एंड कन्फ्रंटेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, तो हम जिसको बोलते हैं रियल टाइम कॉम्बैट सिचुएशन वहाँ पे दी गई थी। तो ये एक वन ऑफ द एस्पेक्ट्स है, इन हिडन एस्पेक्ट आपने IR के क्वेश्चंस अगर आता है इंडिया चाइना से रिलेटेड तो एक व्यू आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑफिशियल क्या बोलते हैं हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर ने ये दिया हुआ है, भले ही एनोनिमिटी दिखाई गई है, द हिंदू के फ्रंट पेज पे ही न्यूज़ है। ठीक है, सो लेट्स हैव फॉलो अप ऑन दिस न्यूज़ ऑल्सो इन फ्यूचर। Moving on, residents oppose funeral of patients near their village। ठीक है, हमने बोला था कुछ स्टेट्स के ऐसे कुछ न्यूज़ होते हैं हमने इग्नोर करने चाहिए, बट कुछ केस स्टडीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है जब छोटे छोटे एक सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इश्यूज जो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस आर्टिकल एंड वी हैव फ्रेम्ड दिस काइंड ऑफ केस स्टडी। अर्लियर ऑल्सो वी हैड फ्रेम्ड दिस such kind of case study, but that was regarding another issue. For example, one dead body was there and it was immersed in, let's say one reservoir where the villagers have drinking water, and there was, let's say believe that the AIDS the virus, HIV virus will spread through that water. So such kind of news was there a few years ago, and some same kind of let's say case study can be framed from this news also. Authorities in one of the districts of India are searching for burial site for patients died due to COVID-19, and when they come to a particular site in near the village, the residents opposed the authorities. They feared that the water reservoir, the only drinking water source, they will get polluted. Suppose you are the district collector, discuss your courses of action and give justification. तो डिसीजन प्रीमाइसेस में हम बोल सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो क्या सोच के डिसीजंस लेगा, उनकी लीडरशिप स्किल यहाँ पे दिखाई देंगे। सोशल इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएजन विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, रैशनल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर बाय लेट्स से सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वी कैन से इट इज़ अगेन वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड एवरीवन शुड हैव दिस। एक्शंस में ये जो 3 एक्शंस हमने लिखे हैं ये इसी आर्टिकल में दिए गए। तो इस तरीके से इनपुट्स आप एथिक्स पेपर के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, ग्राम सभा अरेंज करना, उनको परसुएड करना, एक्सपर्टाइज बुला के उनको ये एक्सप्लेन करना। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें इसी आर्टिकल में ही मिल जाएगी आंसर के लिए आपको. फाइन. सो ट्राई टू लेट्स से हैव सम काइंड ऑफ brainstorming on such kind let's say issues that are happening around country during this COVID-19 period. Fine. So moving on, next article, Punjab farmers find a better way to grow paddy. Now this article is having context of let's say direct seeding of rice technique, DSR technique for paddy cultivation, rice cultivation. Now we know that there is let's say out migration of migrants or agricultural or farm migrants from Punjab largely to UP and Bihar, and there is shortage of labor in the Punjab and Haryana region, and now when there is a Kharif sowing season, transplanting technique यहाँ पे जो देखा है traditional transplanting technique which requires more labor. That's why the farmers in Punjab are moving or shifting towards DSR technique, which requires less labor, which is let's say having very little post harvest stubble produced, as no stubble burning will happen due to reduction in let's say crop cycle. ठीक है, तो वो थोड़ा सा जल्दी ही हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, और ऐसा होगा तो जो स्टबल बर्निंग की वजह से पोल्यूशन होता था दिल्ली एंड एनसीआर रीजन में वो अभी कम हो जाएगा. ठीक है, तो मेंस में एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, एयर पोल्यूशन हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो हम ये सोल्यूशन उसमें डाल सकते हैं. डीएसआर टेक्निक, फार्मर शुड बी लेट्स से परसुएडेड टू अडॉप्ट डीएसआर टेक्निक. There is no let's say difference between, or there is no let's say significant difference between productivity of let's say paddy cultivation or paddy crop because of these cultivation techniques. Rather it is very much beneficial for us in terms of environment also. At the same time it is water efficient let's say technique. ऐसा बोला जाता है कि हम जो irrigation के लिए water use किया जाएगा वो भी बहुत कम लगेगा इस टेक्निक के लिए. ठीक है, तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि वाटर इफिशिएंट भी है. ठीक है, तो ये हम चीज़ उसमें ऐड कर देंगे, वाटर इफिशिएंसी. सो वी नीड टू नो दिस एस्पेक्ट, एंड जो दोज हु आर हैविंग ज्योग्राफी ऑप्शनल मेक नोट ऑफ दिस. You can use this in your answer whenever the question is talking about let's say air pollution problem in North India, or all these things can be asked. At the same time because of this migration issue, what are the problems that are let's say being felt in India and in the various regions. तो पंजाब हरियाणा रीजन में हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ये प्रॉब्लम हो रहा है. मूविंग ऑन, फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, NATGRID टू गेट इन्फो ऑफ सस्पेक्ट्स फ्रॉम FIR. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि NATGRID क्या है, उसके बाद NCRB क्या है और CCTNS क्या है प्रीलिम्स के लिए हमारे. ठीक है, तो NATGRID जो है वो हम बोलते हैं कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जिसको बोला गया है. ठीक है, नाउ दिस इज द प्रोजेक्ट विच वाज कंसीव्ड बाय द देन होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम इन 2009 आफ्टर द मुंबई अटैक्स ऑफ 2008 टेररिस्ट अटैक्स. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तब दो कंसेप्ट, दो प्रोजेक्ट्स हमने हाथ में लिए थे. एक था CCTNS, तो वो तो इम्प्लीमेंट हो गया, बट NATGRID को अपोज किया था बहुत सारे स्टेट्स ने, और उसकी वजह से अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, और ऐसा बोला जा रहा है कि इट मे गो लाइव दिस December 31, 2020. फाइन. सो दिस NATGRID प्रोजेक्ट which is a one stop destination for 10 central agencies such as IB, RAW to access database related to migration, or we can say immigration or banking, telephone details, ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द FIRs. ठीक है, तो FIR में बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है क्रिमिनल की, तो वो इन्फॉर्मेशन यूज़ की जाएगी अभी NATGRID में, ये इंटेलिजेंस एजेंसी के. तो क्या सिग्निफिकेंस है इसका? इट विल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज. ठीक है, तो डेटा हमें यूजफुल होगा, और ये स्टेट पुलिसेस जो होते हैं वो सारे पुलिस ऑनलाइन FIR सब कनेक्टेड हो गए इंडिया में थ्रू दिस प्रोजेक्ट CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स. ये 2013 में हमने शुरू किया था, 2008 में कंसीव किया था, या पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था.
and it interconnected 15,000 police stations and additionally 5,000 offices of सुपरवाइजरी पुलिस ऑफिसर्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये क्या कर रहा है, डिजिटलाइज कर रहा है डेटा, और ये यूज़ होगा पुलिसिंग थ्रू ई गवर्नेंस। तो हम बोल सकते हैं उसको ई गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस, ये सब चीज़ें आएगी इसमें। पुलिस रिफॉर्म्स में भी ये चीज़ डालते हैं जब पबैड ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि CCTNS और नेट ग्रिड ये दोनों उस टाइम पे कंसीव किए थे और ये अभी यूज़फुल होने वाले हैं। अब ये CCTNS जो है वो इम्प्लीमेंट करता है कौन, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो NCRB क्या है, हम बीच बीच में देखते हैं न्यूज़ में कि NCRB का डेटा आ गया है, एनुअल डेटा, तो उसमें क्राइम रेट बढ़ गया है, इन स्टेट में क्राइम रेट घट गया है, ऐसा आता है ना। तो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि NCRB क्या होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग क्राइम डेटा। हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। कब सेटअप हुई थी, 1986 को, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टास्क फोर्स 1985 एंड नेशनल पोल्यूशन कमीशन 1977 थ्रू मर्जर ऑफ 3 विंग्स, डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पुलिस कंप्यूटर, या फिर जो CBI का एक ब्रांच था डेटा वाला, या फिर सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ CBI। ये पहले के जो ऑफिसेस थे इनको मर्ज करके उन्होंने अभी ये NCRB जो डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस का काम करेगी, ठीक है। एंड इट विल हेल्प बोथ लेट्स से इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एज वेल एज इंटेलिजेंस एजेंसीज। फाइन। तो प्रीलिम्स में आपको किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, देयर कैन बी क्वेश्चन ऑन NCRB लाइक दिस, और यू कैन अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक दिस। फाइन। तो NCRB किस 3 बॉडीज़ का मर्जर करने के बाद तैयार हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, बैकग्राउंड जो जिसको बोला जाता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आर्टिकल, मिजोरम क्वेक जोन कॉट बिटवीन द 2 जियोलॉजिकल फॉल्ट्स। yes, for prelims examination this is important. At the same time, those who are having geography optional, they should let's say look into more details of this part. We know that in June June and July month, there were many tremors, or we can say earthquakes ranging from 4 to 5.5 Richter scale in Mizoram region, especially in Champai district bordering Myanmar. ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे हो रहा था, मिजोरम में बॉर्डर पे अलोंग म्यांमार, along the Myanmar border. Okay, now what the expert opinion it is talking about, the article, it is saying that this earthquake happened because of let's say the region is caught between 2 geological faults. तो कौन से हैं, ये है एक चुराचंदपुर माओ फॉल्ट और दूसरा है मठ फॉल्ट। ठीक है, चुराचंदपुर माओ फॉल्ट और मठ फॉल्ट अभी देखते हैं आगे हम डायग्राम में, मैप में वो। ठीक है, तो वो कहाँ पर है, चुराचंदपुर माओ, ये 2 प्लेसेस है, चुराचंदपुर और माओ, तो उसके ऊपर वो फॉल्ट को नाम दिया गया है। मणिपुर में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग वो सीधा फॉल्ट है। ठीक है, या फिर हम देख सकते हैं दूसरा जो है मार्ट लेट्स से फॉल्ट जो है नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट अक्रॉस मिजोरम बीनीथ द रिवर मार्थ। ठीक है, तो वहाँ के सीएम ने अभी इसकी डिटेल स्टडी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लेट्स से रिक्वेस्ट किया हुआ है। व्हाट इज़ द बेसिक फॉल्ट्स क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूटीज और जो क्रैक्स होते हैं क्रस्ट में। ठीक है, तो वो एक दूसरे के ऊपर जब स्लाइड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, जो मतलब बहुत देर से वो ये करके रखा हुआ रहता है, तो सडन मूवमेंट की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट्स व्हाई देयर आर ट्रेमर्स फेल्ट ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थक्वेक जो है क्यों होता है, जब ये फॉल्ट के अलोंग 2 रॉक्स जो है वो क्या होते हैं, स्लाइड हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप डायग्राम में, मैं अगर दिखाऊंगा, समझो ऐसे 2 बड़े रॉक्स है अर्थ क्रस्ट में, और ये एक पोजीशन में लॉक्ड है। अभी जब लॉक्ड होते हैं तो उनके ऊपर इनकम्बेंडेंट प्रेशर होता है दूसरे रॉक्स का, तो उस पोजीशन में वो अभी लॉक्ड है। बट जैसे जैसे अर्थ क्रस्ट में चेंजेस होते जाते हैं तो इस पर प्रेशर बढ़ता जाता है, और ऐसा एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे ये प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता है उनसे,
they start to slide along this fault line, and because of this sliding there is a release of energy, and that energy is released in terms of seismic waves. ठीक है, तो P वेव्स, S वेव्स और वो सरफेस वेव्स आपने पढ़ा होगा NCERT में 11th स्टैंडर्ड की. तो the basic cause we can say that for the earthquake is because of the movement of rocks along the fault zones in our earth crust. Fine. तो यहाँ पे लिखा है देखो आप, vertical and lateral slippage of crust along the faults causes an earthquake. Fine. Now let us see in this diagram, basically this region is eastern Himalayas, okay, or we call them as Purvanchal hills, eastern Himalayas or Purvanchal hills. In this Purvanchal hills, here we have Naga thrust, and this is the fault, Churachandpur Mao fault, जो बोला था साउथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, दिख रहा है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. और मार्ट फॉल्ट देख रहे हो आप यहाँ पे कि नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है, तो ये रीजन है जहाँ पे ये अर्थक्वेक हो रहा है रिसेंटली. ठीक है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स उन्होंने ये ज़्यादा स्पेसिफिकली स्टडी करना चाहिए. जीएस स्टूडेंट्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, देख सकते हैं आप. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड? 1 Kurduvadi fault, Allaband fault and Churachandpur fault, let's say Mao fault. Now for basic information we need to know that Kurduvadi fault लातूर में है और Allaband fault भुज में है. ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है. Allaband fault जो है वो भुज रीजन में तैयार हुआ है, और कुर्डुवाडी फॉल्ट जो है पेनिनसुलर रीजन में महाराष्ट्र में लातूर का जो किल्लारी विलेज के यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था 1993 में, तो वहाँ पे वो कुर्डुवाडी फॉल्ट है. और अभी जो हमने चुराचंदपुर का बात किया था वो हम नागालैंड एंड मिज़ोरम हम बोल सकते हैं यहाँ पे अलोंग द बॉर्डर ऑफ म्यांमार. ठीक है, तो so such kind of question we can expect in our examination. So next article, it is talking about, let's say, flood resistant paddy what you can say varieties of Ranit sub 1 and Swarna sub 1 and Bahadur sub 1. तो ये तीन आपको प्रीलिम्स के लिए पता होने चाहिए. These are having the common characteristics of flood resistance. तो ये आपको पता है कि आसाम में जो फ्लड्स आते हैं ड्यूरिंग जून जुलाई, दे आर हैविंग लेट्स से एनुअल फेनोमेना. तो उसकी वजह से एग्रीकल्चरल क्रॉप्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, और उसके लिए हमने जो है टाइम टू टाइम द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक ICAR हैव बीन फोकसिंग ऑन डेवलपिंग फ्लड रेजिस्टेंट और यू कैन से वाटर रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ पैडीज. ठीक है, तो ये तीन आपको नाम पता होने चाहिए. तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रनीत सब 1, स्वर्ण सब 1, बहादुर सब 1 वैरायटीज ऑफ पैडी क्रॉप्स. तो अगर आपको ये पता नहीं है तो ये नहीं आएगा आपको आंसर. ठीक है, तो इसलिए आपको चीज़ें पता होनी चाहिए. और ये सब मतलब क्या है कि सबमर्जेंस, अगर ये भी पता होगा आपको, सबमर्जेंस का मतलब थोड़ा पानी के अंदर जाएगा, तो तब समझ सकते हैं कि आप उसका फ्लड रेजिस्टेंस के लिए होगा. ठीक है, बाकी भी होते हैं बहुत सारे क्रॉप्स, जैसे कि ड्रॉट रेजिस्टेंस वाले क्रॉप्स कहाँ पे होंगे? राजस्थान में, गुजरात में, उस रीजन में या ड्रॉट प्रोन एरियाज में लगाए जाएंगे. पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ तो बहुत सारी होती है, हमें पता है कि पेस्ट डिसीजेस के लिए वगैरह. शॉर्ट क्रॉप साइकिल हम बोलते हैं कि एज अ सोल्यूशन पंजाब, हरियाणा, उस रीजन में जहाँ पे स्टबल बर्निंग है, वो वैरायटीज़ डेवलप होनी चाहिए. तो ऐसे कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको. फाइन. सो दिस वर द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स इन टुडेज न्यूज़पेपर. कैप्शंस एंड कोटेशंस में हम बोल सकते हैं जो वे फॉरवर्ड लिखा हुआ था, राइट, जो एडिटोरियल में,
द पैंडेमिक कंक्लूजन जो लिखा हुआ था, पैंडेमिक प्रेजेंट्स अ क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू प्लान ए ग्रीन डील. Fine. So these were important articles in today's The Hindu newspaper. So try to take inputs from these articles, very important articles for your examination. For further information regarding editorial discussion classes wherein in-depth analysis of these mains related articles is done by Ansari sir and team, you can contact Lukman IAS. Thank you.